So hi guys, in this video we are going to discuss about backgrounds, which is kind of a very important topic because backgrounds के साथ बहुत deal करते हो और students भी बहुत curious रहते हैं background के साथ कैसे they have to work because यहाँ पर you can set background images and all. So मैंने क्या किया है कि मैंने जो भी इस वीडियो में पढ़ाना है वो मैंने यहाँ पे as reference लिख दिया है क्योंकि there are so many things भूल ना जाओ इसलिए. So let's start. The first thing is the background color property. So you already know this property, आपने past में use भी किया है. I'll just show you certain variations. जैसे कि let's say I want to add a background color of let's say red on the body tag. So I'll write background color color, or you can easily say something like red, and if you reload this you get a red background, right? The second way of adding backgrounds is basically adding this hex code जो आपने शायद कभी यूज़ किया भी होगा पास में, गूगल से मिल जाएगा आपको. So if you want some other shade of red, you can simply go to a tool like this and you can select it by dragging and changing values like this. Okay, यहाँ पे values change हो रही हैं. और now what we can do is I can again reload my page and I can show you that this is a different version of red. Okay, there is one more way of writing this in terms of RGB values. You can also add this. Okay, so I'll go back to the code and instead of writing this hex code I can write the RGB value like this and it will give me the same output. You can see it's the same thing. Okay, let's select something else. Let's say this blue. I'll copy this one, or rather a darker shade of blue. Let's say this one. Let's copy this and let's paste it here. Yeah, now if I reload, this is my page, right? Now there is one more thing that you can actually experiment with. You can actually change the opacity of your background color. कितना transparent चाहिए, कितना opaque चाहिए. You can actually control that. If you go to the RGB bracket and if you put a comma in the last, you can put a number between 0 and 1. So let's say if you put 0.5, देखो क्या होता है यहाँ पे, ये ब्लू थोड़ा सा कम ब्लू हो जाएगा, राइट? अगर आप इसको 0 कर दोगे तो it will become completely white. See, so you can control the opacity if you want to. Again up to you. Okay, so ये दो चीज़ें बतानी थी इसमें background color में. Now let's move on to background image property, right? Very very interesting and very important. So let's say आपको background में कोई एक image चाहिए, right? Background में. So what you can do is obviously you will not use this. I mean you can use it, but इसके ऊपर एक image आ जाएगा. So इस point पे use नहीं कर रहे. Background image property में what you have to do is you have to provide a URL. Now this URL can be either local or actual server पे कोई image हो सकता है, ठीक है? So मैं आपको दोनों दिखाता हूँ. सबसे पहले जैसे कि ये एक गूगल इमेज है, मतलब इसका URL इज दिस. मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट? एंड नाउ यू कैन सी इफ आई रीलोड दिस पेज, नाउ आई हैव अ बैकग्राउंड इमेज और मेरा टेक्स्ट उसके ऊपर काइंड ऑफ ओवरले कर गया, ठीक है? तो अगर आपको इंटरनेट पे कोई भी पिक्चर अच्छा लग रहा है तो यू कैन यूज इट एज योर बैकग्राउंड. ओके, क्रेडिट देना चाहिए वैसे. सो नाउ अब एक काम करते हैं, लोकल मशीन से एक इमेज को डिस्प्ले करते हैं. सो मैंने क्या किया है, मैंने मेरे फोल्डर में यहाँ पे इमेज बोल के एक फोल्डर बनाया. उसके अंदर देर आर सर्टेन इमेजेस. ये रहा इमेज फोल्डर और उसके अंदर ये 2-3 इमेजेस. इनफैक्ट ये पर्टिकुलर इमेज में डाउन और डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज ये काम का नहीं है. सो आई हैव दिस इमेज एंड आई हैव दिस इमेज, ठीक है? ये 2 इमेजेस है मेरे पास. ओके, सो एक काम करते हैं, लेट मी शो यू कि इन इमेजेस को कैसे ऐड करना है. तो फॉर नाउ आई रिमूव दिस URL, राइट? और अब मैं क्या करूँगा कि आई ऐड द फर्स्ट वन 247. बाय द वे दिस इज द इमेज, मैंने यहाँ से डाउनलोड किया फ्री पिक से. दिस इज द इमेज, ओके? और इस इमेज का नाम है 247.jpg. ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं अपने करंट फाइल से इमेज में जाऊँगा. सो आई राइट img, मेरा फोल्डर का नाम /247.jpg. ओके, आई गो बैक एंड इफ आई रीलोड दिस यू कैन सी मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, राइट? अब यहाँ पर यू मस्ट नोटिस दिस कि ये इमेज एक्चुअली थोड़ा बड़ा है जिसकी वजह से पूरा पेज में फिट नहीं हुआ. और देख रहे हो जो पूरा का पूरा इमेज था, लाइक यहाँ पे एक लाइटर शेड ऑफ ब्लू था, वो सब यहाँ पे नहीं आ पा रहा है.
ये देखो बहुत छोटा सा एक पोर्शन आ रहा है। सो अगर आपको पूरा इमेज फिट करवाना है तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होता है एंड वी कॉल दैट, हमने ये देख लिया बैकग्राउंड, ये देख लिया। अब हम इस पे जा रहे हैं बैकग्राउंड साइज। तो बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी में यू हैव टू राइट कवर। सो कवर क्या करेगा, पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेगा और आपका इमेज अब ऐसा दिखने लगेगा। सी जो इमेज यहाँ पे था एक्चुअल, वो बिल्कुल वैसा यहाँ पे दिखने लग गया। सो अगर आपके पास कभी बड़ा इमेज है या छोटा इमेज है जो फिट नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर बैकग्राउंड साइज का वैल्यू कवर कर सकते हो, तो वो पूरे पेज को कवर कर लेगा। ठीक है, आई गेस ये पोर्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज आई चेंज दिस इमेज एंड आई यूज दिस angel.png। ये इमेज मैंने जानबूझ के रखा है बिकॉज ये इमेज थोड़ा छोटा है। सो अगेन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। angel.png बोल के ये इमेज है और ये ट्रांसपेरेंट इमेज है बाय द वे। ठीक है, इसलिए PNG है। PNG ही ट्रांसपेरेंट हो सकता है, JPG ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। आई थिंक यू नो दिस। सो एक काम कर रहा हूँ मैं, फॉर नाउ कवर को हटा रहा हूँ और आई एम जस्ट यूजिंग इट लाइक दिस एंड यू कैन सी जस्ट बिकॉज ये इमेज छोटा था क्या होने लग गया कि वो पूरे टाइम रिपीट होने लग गया। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है, डिपेंड्स। आप अगर कुछ स्पेसिफिक आई डोंट नो स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन बनाना चाह रहे हो तो अलग बात है, बट अभी ये इतना अच्छा नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिमूव दिस बाय यूजिंग द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। सो यू विल राइट बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी और आप यहाँ पे लिखते हो नो रिपीट। इससे क्या होगा, वो रिपीट नहीं करेगा। सी एक सिंगल आ रहा है, राइट। अब चाहो तो इसका आप कुछ और वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हो। जैसे एक होता है रिपीट एक्स, होगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये देखो, राइट। सिमिलरली देयर इज रिपीट वाई, होगा बट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, लाइक दिस। ओके, बट जनरली स्पीकिंग यू कीप इट एज नो रिपीट लाइक दिस, सो दैट सिर्फ एक जगह पे है, लाइक दिस। ओके, आई गेस ये वाला चीज क्लियर हो गया। सो हमने बैकग्राउंड रिपीट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डू बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। बिकॉज ये जो इमेज है ये थोड़ा छोटा है, तो आप एक्चुअली इसका पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टाइल में बॉडी को एक हाइट दिया है। उसका रीज़न ये है कि आई शो यू, अगर मैं हाइट हटा दूँ और यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंट्रोल द बैकग्राउंड पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे दो वैल्यूज देनी होती है, वन फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, वन फॉर वाई कोऑर्डिनेट। सो लेट्स से आपने लिखा टॉप सेंटर। ओके, इससे क्या होगा, इससे आपका ये जो इमेज है ये देखो टॉप में सेंटर पे आ गया। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, लेफ्ट सेंटर कर सकते थे और उससे लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, बट अगर आप बॉटम करने जाओगे, जैसे आपने बोला लेफ्ट बॉटम, तो वो और ऊपर चला गया। दिस वियर्ड बिहेवियर इज बिकॉज कि वहाँ पे सिर्फ एक H1 है, तो बॉडी का ही हाइट ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, जैसा मैंने पहले करके रखा था, आप एक्सप्लिसिटली बॉडी का हाइट थोड़ा बढ़ा सकते हो। मतलब बाद में तो आप जब वहाँ पे चीज़ें ऐड करोगे तो अपने आप आ जाएगी, बट फॉर नाउ लेट्स से हमने 600 पिक्सल्स ऐड किया। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगा, ये देखो वो ऑटोमेटिकली बॉटम पे चला गया। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली प्ले विद द वैल्यूज। लेट्स से आपने लिखा सेंटर, तो वो दोनों जगह से सेंटर पे आ जाएगा, लाइक दिस। सी, ठीक है, सो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस वैल्यूज। आप लिख सकते हो, लेट्स से देयर आर सर्टेन वैल्यूज, मैं आपको दिखाता हूँ। इनफैक्ट ये दीज आर द वेरियस वैल्यूज दैट यू कैन हैव। ये वैल्यूज आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, लेट्स से आपने लिखा राइट बॉटम, तो इससे ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स रन दिस। सी, एकदम बॉटम में चला गया। ठीक है, तो यू कैन कंट्रोल दिस एंटायर थिंग। ओके, सो आई गेस आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। Now let's see what is background attachment property. Okay, so to show this, what I'll do is I'll add a div, और उस div में I'll just write hello world. ठीक है, hello world, and I'll copy paste this entire thing quite a few times. ठीक है, बस ऐसी rough text है, because I want to scroll this entire thing. Okay, मैं scroll चाहता हूँ मेरे पेज में, तो और मैं ऊपर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इनलाइन में लिख दे रहा हूँ। इनलाइन में मैंने स्टाइल दे दिया विड्थ ऑफ लेट्स से 200 पिक्सल्स। सो यू कैन सी ये पूरा एक स्क्रॉल आ गया क्योंकि पिक्सल्स बहुत कम है। अब आप नोटिस करोगे कि जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो साथ ही साथ मेरा इमेज भी स्क्रॉल हो जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियस बिहेवियर, राइट, दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली कंट्रोल दिस बिहेवियर, और आप ऐसा कर सकते हो कि ये चीज़ स्क्रॉल होगा, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा,
by using this property called नीचे चला गया actually this property, background attachment property. Okay, so what you will do is you will write this code, background attachment, and you can put a fixed attachment, जिससे क्या होगा कि अगर आप इस पेज को लोड करो, ओके, अब देखना वो वहाँ पे फिक्स रहेगा और आप स्क्रॉल कर पाओगे। सी, ये आपने देखा होगा कभी कभी कहीं पे लोगो वगैरह की तरह यूज हो सकता है ये, ठीक है। सो दिस इज बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी गाइस। ओके, आई गेस ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया। वन लास्ट थिंग दैट विल कवर इन दिस वीडियो इज दिस बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। सो व्हाट यू कैन डू इज एक्चुअली, मैं ये सारा कोड हटा रहा हूँ बिकॉज उतना ज़रूरत नहीं है। You can actually write this entire code using just one line of code. I'll put a comment so that आपके पास reference रहे. What you can do is you can write background, only background, and then you can provide all these values like this /ing/angel.png. उसके बाद you can put no repeat. उसके बाद you can put let's say right bottom, and you will find out कि ये पूरा कोड लिखने के बाद भी चीज़ें बिल्कुल वैसी आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट हैंड है, आप एक साथ ही पूरा चीज़ लिख सकते हो, बार बार आपको सारी प्रॉपर्टीज रेफर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट वाज गाइस बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड कलर एंड ऑल। आई गेस ये वाला वीडियो समझ में आया, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।